So let's continue the exercise 5B, question number 2. Just for the sake of revision, in the last lecture we did nature of roots, how to find the nature of roots. So if b square minus 4ac is equal to 0, then we say the roots are real and equal. If b square minus 4ac is greater than 0, then we say they are real and unequal. And if b square minus 4ac is less than 0, then we say they are imaginary. Okay, 3 simple answers. Now this, as I said before also, this first one is very important. Equal roots wala. Okay, okay. So let's see the question number 2. What they are saying is, find the value of p if the following quadratic equations have equal roots. उन्होंने बोला है the following quadratic equations have equal roots. मतलब बोल दिया है कि equal roots है. अगर equal roots है मतलब ये condition satisfied है. ठीक है. The equation has equal roots. ठीक है. Means b square minus 4ac is equal to 0. Okay, b square minus 4ac is equal to 0. ठीक है. Equation क्या दिया है मुझे? Equation given is 4x square okay. Now from here I will find the values of a, b and c. So what is my a? ये हो गया मेरा a, correct. b क्या होगा? The coefficient of x. Coefficient of x क्या है यहाँ पे? The coefficient of x, ये पूरा coefficient of x है. ये पूरा coefficient of x है. तो ये है b. And the last number, the constant, is c. ये है a, b, c. सही है? a, b, c. Now put these values in this equation. So b square minus 4 is equal to 0. ठीक है. देखो ना मैंने equal to 0 क्यों लिया था? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि the quadratic equation has equal roots. ये बोला है, इसीलिए मैंने b square minus 4ac equal to 0 लिया. ऐसा कोई रूल नहीं है कि b square minus 4ac हमेशा 0 होगा. ठीक है. Okay, so let's put the values. So minus p minus 2, ये मेरा b है ना, तो b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा minus 4ac. ओके. नाउ ऐसा आपके पास साथ कई बार होगा that there will be a negative term and you will have to take the square of that term. So always remember, when you are taking a square of a negative term, this negative sign is gone. क्योंकि आपने स्क्वायर ले लिया ना. जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो तो नेगेटिव साइन चली जाती है. ठीक है. तो दिस इज एज गुड एज यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ p minus 2 the whole square. ओके. आपने क्या किया? p minus 2 the whole square ही फाइंड कर रहे हो. माइनस ये क्या है? 16. समझा मैंने ये माइनस साइन क्यों हटा दी? अगर समझो आपने इसको माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने फिर ऐसा हो जाएगा माइनस p प्लस 2 द होल स्क्वायर. और इसको स्क्वायर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी. ठीक है. इससे अच्छा क्या करना है? इस माइनस साइन को बाहर ही रखना है. होल स्क्वायर लिखा, मतलब जैसे कि अगर -5 द होल स्क्वायर है तो आई नो दैट दिस माइनस साइन विल गो अवे क्योंकि इट इज द स्क्वायर. ओके, द माइनस साइन विल गो अवे. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखो. दिस इज देयर. नाउ आई विल ओपन दिस. सो a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर minus 16 equals 0 था. So this is p square minus 4p minus 12 equals 0. Now you can split the middle term here. Split the middle term and find the value of p. Tell me the answer.
Students, you are giving me the answer as 6 and -2. मैं देख रहा हूँ कैसे 6 और -2, आपको यहाँ पे -4 चाहिए, राइट? सो वाई, अच्छा, द वैल्यू ऑफ p, ओके 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 ओके, हाँ, सो यू आर सेंडिंग मी द वैल्यू ऑफ p. आई थॉट यू आर टेलिंग मी द स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग तो आपका सही है, ठीक है, इसको हम ग्रुपिंग करेंगे. So p will be 6 or p will be -2. ठीक है, this is the answer. So I think you have understood how to solve this one. How to solve this question, you have understood very well. Solve the second part also. Solve the second part also. Sir, in the second sum, x square's coefficient is 1, right? Yes. The answer should be 1 or 9. I can see few students are giving some wrong answers, I think. किसी को 1 और 5 आ रहा है, किसी को 9 और -1 आ रहा है. जस्ट चेक करो कहाँ पे आपकी गलती हो रही है.
Next, third question number 3. They are saying the equation 3x square minus 12x plus n minus 5 is equals to 0 has equal roots. तो मतलब इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है. एक्चुअली ये भी सेम ही सम है. आई थिंक यू शुड डू इट फॉर होमवर्क. एकदम सेम सम है, कुछ भी नहीं है इसमें. n ढूंढना है, ठीक है. नेक्स्ट टू सम, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. नॉट टू वेस्ट मच टाइम. 3 and 4 आई थिंक यू शुड डू इट फॉर होमवर्क. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम है. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. बस वही चीज करनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है. ओके, अगर चाहिए तो मैं वैल्यू बता देता हूँ. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सिंपली ये ए है, ये बी है और ये सी है. वैल्यू पुट करो, आंसर रेडी. को कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल. बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, क्योंकि उन्होंने बोला है इक्वल रूट्स है. ठीक है, चलो तो हम लोग 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 वो थोड़ा सा अलग है. So question number 5 says find the value of k for which the equation 3x square minus 6x plus k equals 0 has distinct and real roots. सर लेकिन ना आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है ना. मतलब इक्वल टू 0 दिया तो डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए. इक्वल टू 0, एक मिनट, ये आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना 5 की? हाँ यस सर. हाँ, इसमें इक्वल टू 0 इक्वेशन को दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को नहीं दिया. अच्छा अच्छा. बी स्क्वायर ओके माइनस 4ac अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है. इक्वेशन तो हमेशा इक्वल टू 0 होता है. ओके ओके सर. तो सी, दे हैव सेड डिस्टिंक्ट एंड रियल. अब ये डिस्टिंक्ट नया वर्ड यूज किया है. डिस्टिंक्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल. ये तो आप लिख दो टेक्स्ट बुक में, जहां पे डिस्टिंक्ट लिखा है राइट देयर अनइक्वल. ओके, सो दे आर सेइंग दैट द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी रियल एंड अनइक्वल बोला है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0. करेक्ट, ग्रेटर देन 0. बस अब इसे सॉल्व करो. put the values. This is A, B and C. Put the values. Okay, so I think this is also done. So we should come to the next exercise, exercise 5C. I hope किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो. Sir, we don't have to make a solution set, right? नहीं, nothing. Now this exercise 5C. Start to do it. Now this exercise 5C is about factorization. मतलब फैक्टराइजेशन जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है. ठीक है, क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे. सेम टू सेम इस चैप्टर में है, इस एक्सरसाइज में है. आई मीन, ठीक है, टिल क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. ये पूरा का पूरा उन्होंने रिवीजन के लिए आपको दिया है, फॉर रिवीजन.
कि बड़े बड़े इक्वेशंस दिए हैं, उसे सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x ऑलवेज. यू नो दैट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू गेट टू वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, तो why have they given you this revision? Because these type of equations will get formed in the word problems. जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे या बाद में करेंगे, जब भी करेंगे, द वर्ड प्रॉब्लम्स में ये इक्वेशंस बनेंगे, तो इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसीलिए दे हैव गिवन दिस रिवीजन टू यू. ठीक है, तो हम भी इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 है, इसमें से हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारे सेम है. ओके, तो थोड़े डिफिकल्ट वाले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ. दोज क्वेश्चंस वी विल डू इट. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और कुछ नहीं करना है. किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर डाउट्स है तो जब मैं सम सॉल्व करूँ हैंड रेस करके मुझे पूछ लो. ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. आपने लास्ट टाइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, लास्ट ईयर किया था, बट अगर भूल गए हो तो भी उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, आप मुझे पूछ लो. ठीक है, हम वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है. ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर्स लिख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं कर ही रहा हूँ बिकॉज वो एकदम बेसिक है. ठीक है, ठीक है, विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ये इतने. ठीक है, जो लोग थोड़ा जल्दी फास्ट सॉल्व कर लेते हैं उनके लिए मैं 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ. वो लोग ये दोनों भी करेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी कंप्लीट करने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो ये दोनों भी कर लेना. ठीक है, ओके. नाउ हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक बार मैं जिन लोगों को रिवीजन चाहिए उनके लिए बताता हूँ. सी द मिडिल टर्म हियर, सबसे पहले तो द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन दिस फॉर्म दैट फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट टर्म है, मतलब नंबर है. ठीक है, इसी में अरेंज होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, अगर ये एक्स वाला टर्म इधर दिया हुआ है, कांस्टेंट इधर दिया हुआ है, तो पहले उसे रीअरेंज करो. ओके, ट्राई टू कीप द एक्स स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है ना, ट्राई टू कीप देम पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो मिडिल टर्म होता है दैट इज द सम, एंड जो ये लास्ट टर्म होता है दैट इज द प्रोडक्ट. ओके, अगर यहाँ पे कोई नंबर है हियर, इफ देयर इज अ नंबर हियर, समझो 2x स्क्वायर है, तो दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोडक्ट इन रफ. इन रफ वर्क में जो -24 है, तो -24 अगर यहाँ पे 2 है यहाँ, तो -48 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, सम में उसको करना नहीं है मल्टीप्लाई. ठीक है, सम में नहीं करना है, सम में 2 को यहीं रखना है, 24 -24 को यहीं रखना है, बट प्रोडक्ट लेते वक्त उसे -48 का प्रोडक्ट से फैक्टर्स ढूंढने हैं. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा था मैं. ओके, सो अभी मुझे -24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 24 6 4 का 24 हो सकता है. ठीक है, लेट्स ट्राई 6 4 से मुझे आता है क्या ये, लेट मी चेक. मुझे -24 चाहिए, तो अगर मुझे और -10 भी चाहिए, तो अगर मैं दोनों को माइनस लूंगा तो -6 -4 विल गिव मी -10 ऐड करने पे, बट मल्टीप्लाई करने पे -6 इंटू -4 विल गिव मी +24. मुझे चाहिए -24, तो ये नहीं चलेगा, ये नंबर्स नहीं काम आ रहे. दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, प्रोडक्ट और सम दोनों होना चाहिए. तो दूसरा कोई फैक्टर्स देखते हैं, 12 2 जा. ठीक है, -10 चाहिए, तो बड़े नंबर को नेगेटिव साइन, छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन. -12 + 2 विल गिव मी -10, और मल्टीप्लाई करने पे -24. तो यस, दिस इज वर्किंग, तो ले लो इसको. ठीक है ना, अभी नॉर्मल है.
सर हमें इस फॉर्मेट में लिखना हुआ है, जैसे ग्राउंड ब्रैकेट डाल के 12 हाँ हाँ हाँ, सोल्यूशन देते हैं तो बेटर है, थोड़ा ऐसे लिखो। अच्छा ओके। नेक्स्ट मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल्स 2.5। सो इसका LCM हो जाएगा, दिस x विल गो एंड गेट मल्टीप्लाइड हियर। सो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स 2.5 को इट इज 25/10। पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो आई ऐड 10 इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो 5 5 are 5 2s are, so this is 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x square plus 2 equals 5x। okay, so 2x square minus 5x plus 2 equals 0। अब इसको, अब देखो यहाँ पे अब आ गया, ये फर्स्ट भी नंबर है लास्ट भी नंबर है, तो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 4 आता है। 4 के फैक्टर्स ढूंढूंगा मैं, ठीक है। सो 4 इज 4 1 जा 4, और चाहिए -5, तो ऐड करके -5 कब मिलेगा, व्हेन इट इज -4 एंड -1। ओके, so take common x minus 2, take -1 common, x minus 2। Now see in this question number 10, I think this question number 10 है, हाँ। Here, यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है इधर, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वल्स टू 0 आ गया, टेक x कॉमन पॉसिबल है यहाँ पे, तो टेक x कॉमन, तो क्या आएगा 2x minus 3 equals 0। ओके, अब दिस x विच यू हैव टेकन कॉमन ना, दिस x ये भी आपका एक ब्रैकेट है, मतलब ये भी आपका, तो आपको जब आप इक्वल टू 0 दोनों को अलग अलग लेते हो ना इक्वल टू 0 करने के लिए, ठीक है, तो दिस x इज सेपरेटली इक्वल टू 0 एंड दिस 2x minus 3 इज सेपरेटली इक्वल टू 0, बीच में और आ जाता है, तो इस 2x minus 3 से आपको x की एक वैल्यू मिलती है और एक वैल्यू हो जाती है 0। समझ रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही नहीं था, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कोई कुछ डाउट नहीं पूछ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉपिक कुछ ज़्यादा ही ईजी है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, सो दैट इज गुड इन फैक्ट, एंड सो आई विल ऑल्सो सॉल्व इट with speed so that
Yes, Arya. Yes. I can't hear your voice. It's very low. Sir, can you repeat question Repeat. number 10? Question number 10. Yes. See, here there was nothing, there was no constant term. There was no constant term here. Okay. So you cannot split the middle term because product ही नहीं है आपके पास. ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि you have to take the variable common. ये x है, वो x कॉमन ले लिया. ठीक है. ये जो x कॉमन लिया है ना, that becomes your one bracket and this is your second bracket. This is your answer. One time x will be equal to 0 and then 2x minus 3 will be equal to 0. Preksha, what if there is nothing in common? There will always be something in common, Preksha, because variable तो है ही ना, x square और x का term तो है ही, x square and x तो है ही, constant वाला term नहीं है, x square और x तो है ही, तो x तो always will come common. Now in this question number 40, if you recollect, यहाँ पे क्या है? There is 2x minus 3, 2x minus 3. So you have to use substitution method. Let 2x minus 3 equals a. So you take 4a square minus a minus 14 equals 0. Four into minus 14. 4 into minus 14 is minus 56. Now factors of minus 56 will be 8, 7s are, and I want minus 8. So minus 8 plus. Now resubstitute भी करना है because हमने a को 2x minus 3 लिया था. Resubstitute a as 2x minus 3. So 2x minus 3 equals to first case में. So 2x is equals to 5. So x is 5 upon 2. And second, 2x minus 3 is equals to minus 7 upon 4. So 4 will come here. 8x minus 12 is minus 7. 8x equals to 12 minus 7, that is 5. So x is 5 upon 8. Yes, Arya. The hand is raised. Sir, it's the old.
Now here I have to simplify this equation, means I have to first take LCM. LCM कैसे लेते हैं? Cross multiply and denominators multiply with each other. See ये, I hope all of you know this method, that when the denominators are not same, when there are variables in the denominator, then how do you take LCM? किसी को अगर नहीं आता है ना तो जस्ट मुझे बता दो कि कैसे लेते हैं LCM. ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है, मतलब ये दिस डिनोमिनेटर हमेशा नीचे की वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होती है. सो दिस डिनोमिनेटर हियर विल मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, and this denominator here on the left side, x plus 3 will multiply on the numerator of the right side, and then the both the denominators will multiply with each other. इसको ऐसे समझो, a upon b equals, sorry, a upon b प्लस c अपॉन d है. अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो ये d ऊपर जाएगा, ad प्लस b इधर जाएगा, bc अपॉन b एंड d मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से. ये होता है एलसीएम लेने का तरीका. ठीक है, सी मैं इसे अभी इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज ड्यूरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स दिस विल कम अक्रॉस ओकेजनली, सो वहां पे आई विल डायरेक्टली सॉल्व. ठीक है, तो सी दिस x माइनस थ्री जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा x माइनस थ्री स्क्वायर. x प्लस थ्री जब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम x प्लस थ्री स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना तो मैंने स्क्वायर लिख दिया. अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री x माइनस थ्री इक्वल्स 5/2. ठीक है, then open the brackets, a square minus 2ab plus b square plus 2ab plus b square. Okay, yes, done students. Have you completed with these 5 sums? So we can go further. Question number 21 से थोड़ा थोड़ा changes आ रहे हैं sums में. So those sums I want that we'll do it together. Yes, have you completed students? Anyone left out? कोई बाकी है अभी तक complete करना तो just send me a message that sir I'm still doing.
yes, squaring both sides लिखो ना, that is correct. जब स्क्वायर कर रहे हो तब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब रूट ले रहे हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. Okay, so let's do question number 21. Now question number 21 उल्टा क्वेश्चन है. वहां पे they have already given you the solution set. Solution set दे दिया है and we have to find the equation. Okay, तो उल्टा स्टेप्स करना है हमें. उल्टा स्टेप्स. सी हमारे स्टेप्स क्या होता था, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 5 है. ओके, तो 3 को यहाँ शिफ्ट करो, x माइनस 3 0, x माइनस 5 इज 0. ओके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3 x माइनस 5. सी ऐसे ही करते थे ना हम, ये दो ब्रैकेट मिलता था हमें. ठीक है, फिर उस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेते थे और फिर उससे x की वैल्यू मिलती थी. ठीक है, अगर आप उल्टा प्रोसेस देखो तो ये हम करते थे हमेशा. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओपन करो ब्रैकेट्स. ये मिल गया इक्वेशन, मींस क्वेश्चन मिल गया बेसिकली. दिस इज माय आंसर. उल्टा सॉल्व किया हमने, सोल्यूशन से इक्वेशन बनाया. क्वेश्चन नंबर 23. 23 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a plus 1 equals 0 and x square plus ax minus 6 equals 0. Okay, so they have told that a plus 1 equals 0. If a plus 1 is equals to 0, that means, see, if a plus 1 is equals to 0, that means a is equals to minus 1. So a की वैल्यू तो मिल गई ना यहाँ पे, -1. Put that in the equation. ये हमारा इक्वेशन है, इसमें you put the value of a as -1. Okay, now split the middle term. -6 के factors, 3 2s are 6 and I want -1, so -3 plus 2. So I got logged out. Can you stay with sums you did after the 20th sum? 20th sum. After the 20th sum, we did the 21st and then this 23rd. Okay, sir. And so I had a doubt in 17th and in the 20th answer, I'm just getting -9 and 5. Like, how do we get the other sign also, -9 and 9? You will automatically get +9, na? Because it was like this, x square equals 81, so x equals 9. You did in some other way. Yeah, no, so I was getting xy is equal to -81 and x is equal to -9. No. See, first of all, if you are getting x square equals -81, okay, and if you cannot solve this,
You cannot take a square root of a negative number. Okay, sir. Okay, that is not possible. So means if you are getting this now, you have to understand that this minus 81 is wrong. Somewhere I've made a sign mistake. This should be plus. Okay. Okay, because see, we had studied in the formula thing that the square root of a negative number is imaginary number. Yes, sir. Okay, so this is not possible. So it cannot be minus 9. So just check your signs. It should be plus 81. Okay, sir. Thank you. सर 23 को आगे सॉल्व करना है लाइक ऐसे x minus 3 is equals to 0 फिर क्या x बोला is है equals to 23 में आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला ना. हाँ, वो तो करना ही है ना. यस यस. तो x minus 2 मिलेगा और x 3 मिलेगा. यस, ठीक है. 24 सेम है होमवर्क. 25 इज ऑल्सो इजी, एकदम इजी. वो नॉर्मल सब्सटीट्यूशन वाला है कि 2x plus 3 को उन्होंने बोला है y लो एंड सॉल्व करो. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इजी, दैट इज ऑल्सो होमवर्क. 26 एक बार कर लेते हैं. 26. So can you show how to do the 21st sum? 21st, एक मिनट. 3 plus 3 5. अच्छा हाँ, वो वाला. 21st में they have given you the solution. Okay, so you have to solve in the reverse manner. इसे हम जो यहाँ पे करते हैं ना, इसका रिवर्स प्रोसेस करना है. आपके पास आंसर है तो टेक इट एज x is 3, x is 5. Shift the number on the left side like this. So x minus 3, x minus 5, multiply them. Okay, sir. Okay. Understood? Na? Then open the brackets. So you will get an equation. Okay, thank you. So I was saying we'll do the 26th sum. I hope all of you are with me. ठीक है, ऐसी explanation को सुना करो. I can understand sometimes it may happen that you are solving the sum and I am on the next sum or something like that. But फिर भी मैं जब explain करूँगा तो it is very important to be attentive. So without solving the quadratic equation, 6x square minus x minus 2 equals 0, find if x 2/3 is a solution of the equation or not. मतलब हमें चेक करना है कि 2/3 सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है कैसे करते हैं. इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है. एज ए सेक ऑफ रिवीजन ही मैंने ये सम को लिया है. ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देखना है अगर 0 = 0 आएगा तो इट इज अ सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्व दिस.
Question number 28, 29, I want you to do it now on your own. Because हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है सम्स. Just solve it and check your answer. अगर कुछ डाउट आ रहा है तो ask me. I'll give you 5 minutes. So there is a you without solving का मतलब होता है कि सीधा x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो. अगर आपको 0 इक्वल 0 आ रहा है तो इट इज अ सोल्यूशन. इसका मतलब होता है विदाउट सॉल्विंग. और सॉल्विंग का मतलब होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करो और x की एक्चुअली वैल्यू फाइंड करो और देखो कि 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उसे कहते हैं विद सॉल्विंग. तो क्वेश्चन नंबर 29 दो बार सॉल्व करना पड़ेगा x को दो अलग अलग वैल्यू लेके. यस, एक बार आपको x को -3 पुट करना है, यू विल गेट वन इक्वेशन. देन 2/3 पुट करना है, यू विल गेट अनदर इक्वेशन, एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली.
See in question number 30, they have given this equation and they have told that x is equals to 3 is the root. ये रूट है, अगर ये रूट है तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है. When you will solve this, I'm sorry, x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं. ओके, सो x की जगह पे 3 पुट करेंगे. सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. ठीक है. You will get m as, you should get m as 4. और 4 मिलने के बाद आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करो. अब m मिल गया ना, m मिल गया तो m की जगह पे m की वैल्यू पुट करो. ये मिल गया. अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो. स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, जिसमें से एक वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इट इज x3, वो आपको आएगा ऑटोमेटिक, और दूसरा वैल्यू है वो आपका आंसर होगा. टू द क्वेश्चन नंबर 30 ऑल्सो. Sir, can you explain me one more time the 30th sum? They have given you one root, that means x की वैल्यू दी हुई है 3 है. ठीक है, तो आप उस 3 को पुट करो, सम को सॉल्व करो, आपको m मिलेगा. ओके, फिर अब आपके जो इक्वेशन है इसमें m अननोन था, तो m को मैंने पुट कर दिया तो मेरा इक्वेशन रेडी हो गया अब. ठीक है, रेडी होने के बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो. The questions which I have skipped are homework, yes.
Student, just acknowledge me once you complete the sum, because 31st भी करना है हमें and 34 भी करना है. 32, 33 are not very important. See only question 27 is very simple. Just put the value of x as -1. अगर आपको 0 आ रहा है तो it is a root. नहीं आ रहा है तो it is not a root. Okay, students, we'll do question number 31. Have given a lot of time to solve. So given that 2 is a root of the equation 3x square plus minus so they said given that 2 is the root of the equation. 2 is the root of the equation मतलब x की value 2 है. रूट मतलब क्या होता है सोल्यूशन. तो x 2 है
तो वो मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला है 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। So I found the value of p. ठीक है. Further they have said that the equation px square minus qx plus 9 equals to 0, second equation which they have given, has equal roots. बोला है इस equation के equal roots है. अब अगर equal roots की बात आई तो हमें वो याद करना पड़ेगा. equal roots में क्या होता था? b square minus 4ac equals 0. equal roots. तो ये इक्वल, अब यहाँ पे अगेन दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है. And we already know the value of p. This is it. So can we solve the 29th question 29th and the 30th? Sir, गलत आ रहा है. अच्छा, अब मुझे आपका सोल्यूशन सेंड करना, मैं देखता हूँ बिकॉज क्या है, तो एक बार 34 भी करना है हमें. यू सेंड मी योर सोल्यूशन, आई विल चेक इट आउट. यस वी आर. So in this sum, we can't do like we can't substitute the values of p and q and then solve instead of taking b square minus 4ac. बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ q ना. Yes, so, but then we can put the values of p and x, and then we can't solve. No, see, good question. See, which value of x? This value of x? Yes, sir. Yeah, but in the question they have said that given that 2 is the root of the equation, 2 is the root of this equation. मतलब ये Yes. जो x is equals to 2 वैल्यू है वो इस इक्वेशन की है. 2 is not the root of this equation. Okay. डिफरेंस है ना दोनों चीज में. इसका हाँ, इसका देखो, आप जब इसको सॉल्व भी करोगे आगे, ठीक है, जैसे लेट्स से आई p की वैल्यू है 4, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस q की वैल्यू है 12 है, एक्चुअली मैंने प्लस माइनस 12 दिया है. हाँ, यू माइट हैव सॉल्व्ड इट. हैव यू सॉल्व्ड दिस? Yes, sir. Wrong आ रहा है. क्या है आपको x की वैल्यू? 12.5. हाँ 12.5 आ रही है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आई? एक ही वैल्यू आई. हाँ, सही किया है. ठीक है, 2 आनी चाहिए थी. मे बी 36 है ना, तो वो और 12 के लिए चाहिए. मेरे को आ रहा था 16 + 9 - 2q.
मतलब मैंने 4 into 4 किया, 2 की वैल्यू को 2 मतलब x की वैल्यू को 2 ली और फिर वो मेरे को 16 आया। 16 माइनस हमने 12x लिखा है। यस। अच्छा, क्योंकि सबको q की वैल्यू मिल गई है इसलिए, मतलब हाँ मुझे q की वैल्यू नहीं मिली थी इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं वो तो गलत ही था, वो तो सी बिकॉज जो x इज इक्वल्स टू 2 रूट दिया है ना, वही फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, वो सेकंड ओके इक्वेशन में हम यूज नहीं कर सकते वैसा। ओके सर, थैंक यू। ये श्रेया। सर क्लास कब तक खत्म होगी सर? बिकॉज 10 मिनट्स में सर मेरी प्रेयर है इसके लिए। Yes, let's finish this exercise and end the lecture. One sum 34th sum कर लेते हैं, ठीक है? 34th sum, I think all of you have completed this sum. यस सर। So I'll just delete it. थर्टी फोर्थ सम में वैसे 2 मिनट का समय, बहुत ही सिंपल है। इफ -1 and 3 are the roots of the equation x square plus px plus q equals 0, find the values of p and q. -1 and 3 are the roots of the equation, मतलब x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 3 है। तो एक बार -1 पुट करेंगे इक्वेशन में और एक बार 3 पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है? Both ways you will get 2 equations and you will solve them simultaneously. Okay, as simple as that. And question number 32 and 33 मैंने कहा, ठीक है? 32 and 33 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? 33 फिर भी उसमें नंबर्स है, चाहिए तो मैं 33 सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, यस यस आ रही है, 33 में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? वैसे तो वो नॉर्मल मतलब क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला ही समय, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सम वो लोग फैक्टराइजेशन के लिए नहीं पूछते। ओके, दे विल इस चैप्टर में ज्यादा वेटेज दे विल गिव इट टू द डी एक्सरसाइज व्हिच वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इसको भी मैं एक जनरल सॉल्व कर देता हूँ फॉर यू। फर्स्ट वी आर टेकिंग एलसीएम हियर। I'll shift this -200 1200 on the right hand side, और ये x भी जो है ना, this x will also go here. You can just copy the calculation here. First complete this sum, first complete this sum. ये simple वाला था, p और q find करना है सिर्फ, not much of hard work. (1200x minus 20x) will give me 1160x minus 12,000 is 1260x. 2x square, this 1260x will come on the left hand side. I guess 100 will remain. अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे to make the equation smaller. And then you have to split the middle term. I guess this ये ही होना चाहिए इसमें तो. Sir, I wanted to ask 2 questions. Hello. Yes. So first of all, in the 38th sum, sir, x is behind the brackets. Will the sign also be multiplied?
Behind the bracket means So I'm multiplying x value with n plus 1 along, and the minus sign with will also be multiplied with m. minus x is there. Yes, it will It will multiply. become minus xm. Minus x. Okay, sir. And sir, I'm not getting the 29th one, sir. I'm not getting the right answer. Okay. People, why are you struggling with 29? Okay, I'll solve the 29th. Sir. Thank you, sir. Here I think there is some mistake I have made. Question to write copy किया है ना. हाँ, it's 1180. Correct. इसलिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा था, स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी. So this will be 80x. तो ये 40 हो जाएगा. This will be 40x. तो अब स्प्लिटिंग हो जाएगा. 6000 है तो एकदम सिंपल स्प्लिटिंग आएगी. 100 into 60 minus 100 plus 60. बस ये स्प्लिट करोगे तो you will get the answer. So with this, we have completed the exercise. In the next class, we will be doing the D exercise, which is the most important one. And for question number 29, those who are not able to solve the question number 29, I'll do it for you here. यहाँ साइड में जहाँ जगह है, just I'll do it there थोड़ा. Check your equations if you are getting right. The first value of x is -3. So -3 put करेंगे तो you should get the first equation as this should be your first equation. ठीक है? And the second equation will be 2/3 put करना है. Okay, so 2/3 means 4/9 हो जाएगा. So this should be your second equation for question number 29. This should be your second equation. देखो आप लोगों को equation सही मिले क्या question number 29 में? Then you will be able to solve the sum. Equations check कर लो अपने. This should be the equations. I am doing it correctly. Yes. Oh, wait. This should be LCM 9 लिया है ना मैंने, तो ये 9n होना चाहिए. This should be 9n. Yes, हाँ. बाकी correct है. So this should be your equation. एक बार मैं वापस लिख देता हूँ. 4m plus 9n minus 42. ये आना चाहिए equation 1 और ये equation 2. ठीक है? Solve this. Sir, I got the same two equations. So but 9m square आ ही है. नहीं रहा है sir. Sir, but आ ही नहीं रहा है answer.
I'm not जो पीछे आंसर है वो आ ही नहीं रहा है मुझे. ये m स्क्वायर नहीं है ना, ये तो मैंने m स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे. सॉरी m ये, हाँ ठीक है. तो इसके बाद तो मतलब आपका साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करना है that is going wrong. Okay, so wait, I'll do that here. Simultaneously solving करते हैं यहाँ पे those two equations. So 9m plus n equals 21. 4m plus 9n equals minus 42. So n को सेम बनाते हैं, so multiply this equation by 9. So 81m plus 9n equals 21 into 9 कितना होगा? 181. 189. Yeah, sorry. यही तो गलती नहीं की है. मैं हाँ सर 140 माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. 77m equals 147 सर. 147. क्या आंसर है पीछे? सर पूछे फुल होल नंबर में, इसलिए तो सर मेरे को भी यही आ रहा है. Yes, others Sir, m is 3 and n is -6 sir. others who have completed can definitely leave, no problem. Sir, m is 3 and n is -6. अच्छा, दिस इज प्लस यार, सो सिली मिस्टेक. ये तो प्लस होगा ना, 189 प्लस 42 आएगा. मैंने लिखा है वहाँ पे प्लस, बट स्टिल आई डिड सबट्रैक्शन. तो ये प्लस हो जाएगा 231. तो आ गया ना 3. m is 231 upon 77, that is 3. Yes sir, मैंने भी ये मिस्टेक की. Sorry sir. I will send you the pic of this sir. Nice. Same mistake sir. Okay, so Sir, can we leave? doubt? Yes. Yes, Arya. So question number 32 homework है ना? आप ट्राई कर लो. Okay, that's it.